Good morning, students. Welcome you all. So, how are you all? I hope you all are very good. So, as you all know, that we had already started this chapter, that is a triumph of surgery. But today we will continue this. But before it, let me just give you a brief description of what we read. So, you all know that in this chapter we have a three character. That one is the dog whose name is Tricky, and his mistress whose name is Mrs. Pamphray, and the third character is James Harriet. And Harriet is playing the character of a doctor along with being a writer of text. Okay, so in the first page we read that Pamphray and the doctor have a deep conversation about their dog. So let's continue with the next page. Okay, so, students, look at the second page. I tried to sound savior. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. So, in these lines here, Mr. Harriet is telling himself that I was trying to be rude or harsh at that time. Here, savior. Savior means harsh or sound very strong or rude. Now I really mean this, but यहाँ पे वो mention कर रहे हैं कि I mean this also. Okay, I meant this also. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. So उन्होंने मिसेस पैम्फ्रे से कहा कि अगर आप उसका फूड कट डाउन नहीं करते हो, मीन्स उसे एक प्रॉपर डाउट नहीं देते हो, तो योर डॉग will be ill very soon. Okay, you must harden your heart and keep him on a very strict diet. So यहाँ पे डॉक्टर मिसेस पैम्फ्रे से कह रहे हैं कि आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने हार्ट को हार्डन करना पड़ेगा और मीन डॉग को यानी ट्रिकी को किस पे एक स्ट्रिक्ट डाइट उसको फॉलो करवानी होगी. So Mrs. Pamphray wrung her hands. So here wrung means twisted her hands. So she was twisting her hand that time. ट्विस्टिंग क्या होता है? जब हम हाथ को मोड़ते हैं, जब हम थोड़ा घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, हमें लगता है कि अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ. तो सेम थिंग मिसेस पैम्फ्रे के साथ भी हुई थी. शो शी ट्विस्टिंग हर हैंड. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. So, Mrs. Pamphray says that, Doctor, I will do all these things, but I am sure you are right, but it is so difficult for me. So, यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे कह रहे हैं, हाँ मैं जानती हूँ आप सही हो, बट ये जो सब चीज़ें आप कह रहे हो कि ट्रिकी की जो फूड है उसको कट डाउन कर दो, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी. So set off had down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. So here Mrs. Pamphray सोचती हैं, नीचे रोड की तरफ देखती है और डिटरमाइंड मतलब वो सोच दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि येस, जो भी उसने अभी रिजीम लिया है उसे एनी हाउ प्रैक्टिस में इमीडिएटली उन्हें लेकर आना है. ऑल राइट. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. So here यहाँ पर जो मिस्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि मैं जो लिटिल पैट है, वो पुअर पैट है ट्रिकी की प्रोग्रेस को लेकर ही वॉज वेरी वरिड और कंसर्न बिकॉज ट्रिकी वॉज टॉटरिंग. सो हेयर टॉटरिंग मीन्स मूव इन अ फीबल और अनस्टडी वे, मतलब धीरे धीरे चलना और कमज़ोर जो एनिमल है और जो भी पर्सन कमज़ोर है, जैसे आप धीरे धीरे वॉक करते हैं वैसे वो टॉटरिंग कर रहा था. अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. सो हेयर ट्वीड कोट मीन्स अ वार्म क्लोथ्स, है ना, वुलन क्लोथ्स वी कैन से दैट.
सो वुलन क्लोथ से भी एक तो ट्रिकी को प्रॉब्लम हो रही थी और वो स्लोली भी वॉक कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें देखकर मिस्टर हैरियट बहुत कंसर्न थे रिगार्डिंग ट्रिकी। ही हैड अ होल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. So here Mrs. Pamphray ऐड करती हैं कि he has a lots of clothes, means he had a whole wardrobe of different kinds of clothes, like for cold weather he has cold warm clothes, and for rainy season means wet days he has lots of raincoats. Understand? He struggled on drooping in his harness. So here drooping means extremely आप कह सकते हो hanging down in his harness. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मिसेस पैम्फ्रे ने ट्रिकी को एक हार्नेस जो थी स्ट्रैप्स, मीन्स जो गले के राउंड में होता है उस स्ट्रैप से, और एक यहाँ पे एक स्ट्रिंग है उससे इसको होल्ड किया हुआ है। तो जो ट्रिकी है उसका पूरा नेक ऐसे हैंगिंग डाउन हो रहा है क्योंकि वो हार्नेस भी उससे टॉलरेट नहीं कर पा रहा है वो। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamphray. The expected call came within a few days. So यहाँ पे मिस्टर हैरियट सोच रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें देख कर, और जैसे कि मैंने उनको बोला कि ट्रिकी बहुत इल नज़र आ रहा है या शो हो रहा है, तो मिसेस पैम्फ्रे ज़्यादा टाइम इस चीज़ को लेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पैम्फ्रे was distraught. So here distraught means extremely worried, आप कह सकते हो extremely worried थी। किसको लेकर यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे? ट्रिकी को लेकर। So here Harriet knew that Mrs. Pamphray would call him because she was very worried about Tricky. Okay, so Tricky wouldn't eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. So यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं कि टू डॉक्टर, एक डीप कॉन्वर्जेशन था बिटवीन मिसेस पैम्फ्रे और डॉक्टर। सो डॉक्टर से वो कहती हैं, मिस्टर हैरियट से वो कहती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, इवन ही रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स इसके अलावा he had bouts of vomiting. Bouts of vomiting means after a while he started vomiting. कुछ देर में वो क्या करने लग जाता है? Vomiting करने लगता है। He spent all his time laying on a rug. So here rug means a kind of, आप कह सकते हो mat जो हम घर में यूज करते हैं, mat. So he always sat on a mat, sat on a rug and panting means गैस्पिंग। पैंटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? गैस्पिंग। सो गैस्पिंग क्या होता है? जैसे कि आपने कभी देखा हो किसी डॉग को ऐसे जोर से वो हाफता है ना अपनी टंग बाहर निकाल कर, तो उसे गैस्पिंग कहते हैं। तो ऑल द टाइम ट्रिकी सैट ऑन अ रग एंड पैंटिंग मीन्स गैस्पिंग। अंडरस्टैंड? he had didn't want to go for a walk, didn't want to do anything. So यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे कह रहे हैं even he refused all his favorite foods. Apart, he don't want to go for a walk and didn't want to go for don't do anything. मतलब उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. Fortnight means for 14 days. Okay. So here the doctor means doctor किससे कह रहे हैं? Doctor means Mr. Harriet saying to Mrs. Pamphray that I am telling you that you should keep it, means you should keep Tricky under observation for some time. Okay. So he suggested to Mrs. Pamphray. The poor lady almost swooned. Here swoon means a kind of unconscious or faint. Okay. Swooned, kind of unconscious or faint. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day.
सो हेयर जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो स्वीन मीन्स अनकॉन्शियस और फेंट हो गई थी बिकॉज एक्चुअली दिस लाइन इसके बारे में मिस्टर हैरियट कहते हैं कि शी वॉज गोइंग टू फेंट ऑलमोस्ट व्हेन शी केम टू बी नो दैट ट्रिकी विल बी टेकन अवे फ्रॉम हर. So she was sure he would pine and die. So pine and die means pine एक ट्री है वैसे तो, और बट यहाँ पे पाइन से मतलब है लेमेंट मतलब ग्रीफ, सॉरो एंड डाई. तो कह रही है कि वो एक बहुत ग्रीफ और सॉरो में चली जाएंगी, पाइन हो जाएंगी एंड डाई हो जाएंगी अगर इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, अगर वो अपने ट्रिकी को रोज नहीं देखती हैं तो. All right, but I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. So यहाँ पे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत फर्म लाइन ड्रॉ कर दी है एंड उनसे कहा है कि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन दैट वी हैड, कि हमें ट्रिकी को बिना डिले किए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए. फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रे विलिंग. सो हेयर यहाँ पे मिसेस पैम्फ्रे विदाउट डिले एनी सिंगल मूवमेंट और विदाउट फॉलोड द मिसेस पैम्फ्रे वेलिंग. सो हेयर वेलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? क्राइंग और मोर्निंग्स, मतलब शी स्टार्टेड क्राइंग. उन्हें जैसे ही पता चला कि उनका ट्रिकी जो उनका लवली डॉग है वो उनसे दूर हो जाएगा तो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया. मोर्निंग मतलब दुख मनाना स्टार्ट कर दिया. सो यहाँ पे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं बिना किसी डिले के और मिसेस पैम्फ्रे को की बातों को मतलब उनका रोना धोना छोड़कर आई मार्च्ड आउट. So here, marched out means I walked away out to the car carrying the little dogs wrapped in a blanket. So उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए डॉग को मतलब ट्रिकी को एक रैप में बंद किया, मतलब एक ब्लैंकेट से रैप्ड किया और उनसे अपनी कार में लेके चले गए. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड मीन्स all were of them wake up and maids rushed in and out bringing his day back. So see जैसे कि हम सब जानते हैं, we all knew that Mrs. Pamphre was a very rich lady. वो एक बहुत rich lady थी. So obvious है कि उनका staff होगा, उनके पास maids होंगी, तो हर कोई क्या हो गया, वेकअप हो गया और जाग गया, राउज हो गया एंड सब लोग क्या स्टार्ट करने लग गए, जो ट्रिकी का सामान था वो सब कलेक्ट करने लग गए. हिज डे बैड, हिज नाइट बैड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, मीन्स जो भी ट्रिकी के पास था उसके डे बैड से लेकर नाइट बैड तक, उसके फेवरेट कुशन, उसके पास जितने भी टॉयज थे, उसके रबर रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर मीन्स डिनर बोल्स, जितने भी उसके पास बोल्स थे वो सब कलेक्ट करने लगे. रिलीजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे रियलाइजिंग. सो हेयर मिस्टर हैरियट सेज कि जैसे ही मैंने उन सबको देखा, आई रियलाइज दैट माई कार वुडंट होल्ड ऑल दीज ऑफ थिंग्स, मीन्स उनकी कार इतनी बड़ी नहीं है कि ये सारी चीज़ें उसमें आ जाए. So she started to his car and moved away. वो चले गए. As I moved off, Mrs. Pamphre, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. तो जैसे ही वो चले गए, उन्होंने देखा कि जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो सारे कोट्स, मतलब वो मोर्निंग चली गई, बहुत ग्रीफ हो गई, दुख हो गया उनको, और वो अपने सारे कोट्स जो ट्रिकी के थे वो उठाती हैं और कहाँ फेंक देती हैं, विंडो के बाहर फेंक देती है. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. So जैसे ही वो अपनी कार के विंडो से मिरर से देखते हैं, बैक साइड मिरर से, तो उन्हें क्या दिखता है कि everyone was in tears. Everyone means all the staff members or means all the employees of Mrs. Pamphre, and Mrs. Pamphre also started crying. तो सब लोग रोने लग जाते हैं. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जैसे ही मैं glance मतलब एक quick view, एक give a rapid look, किसको दिया? A pathetic little animal
जो पैथेटिक लिटिल एनिमल कौन है? ट्रिकी, जो गैस्पिंग कर रहा है, मतलब हाँफ रहा है जोर जोर से, कहाँ पे? अपनी सीट पर बैठकर। आई पैटेड द हेड, पैटेड मीन्स उनके शोल्डर्स पर पैट करते हैं, ऐसे सबाशी जैसे हम कहते हैं, हेड पर पैट करते हैं। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। देखो ट्रिकी बहुत वीक था, फीबल था, बट स्टिल उसने बहुत एफर्ट शो किया और अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश करी कि यस, मे बी वो ट्राई कर रहा हो ये कहने की, नो नो आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। पुअर ओल्ड लैड, हियर लैड मीन्स अ यंग बॉय, ओके, सो वो कहते हैं ओ पुअर बॉय। I said you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. So वो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर हैरियट कि चलो ठीक है, अभी तुम बीमार हो, अभी ठीक नहीं हो, बट आई एम श्योर कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। All right? Okay, so tomorrow we will continue from here only. All right? Thank you.